نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت ای مرکز کے تحت زکوٰۃ کورس کا پہلا سبق آج شروع ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے انتہائی اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی صاحب نصاب آدمی پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاں نماز کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے ابتدائی معلومات رکھیں کہ آیا ہم اگر مالدار ہیں تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو اس کی تفاصیل کیا ہیں۔ اس حوالے سے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے مختصر زکوٰۃ کورس ترتیب فرمایا ہے، اور اس کے کل 6 اسباق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم 6 دنوں میں اس کو مکمل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کورس کا پہلا سبق۔ پہلے سبق میں زکوٰۃ کی فضائل، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کے فوائد، اور ساتھ ساتھ یہ کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوا کرتی ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں، یہ بنیادی طور پر باتیں ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہے اور وہ باقاعدگی سے اس زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اولاً تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، ایک شرعی حکم کو یہ شخص پورا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کے مال کی برکت اور انسان کے مال کے اضافے اور اس میں پاکیزگی بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو انسان ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد، منافع انسان کو خود محسوس ہوں گے۔ زکوٰۃ کے فضائل میں سورۃ المومنون آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کہا جاتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو متوجہ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف، متوجہ رہے اپنی عبادت کی طرف، تو دائیں بائیں دیکھنا، دائیں بائیں کے خیال لانا اور بے جا حرکات کرنا، ان سے انسان بچتا رہے تو یہ نماز خشوع اور خضوع والی ہے۔ جو بے فائدہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کے لیے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 39 ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شریک ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو غور سے سن لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان سود پر رقم دے لوگوں کو تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں، پھر اصل رقم بھی لوٹا دیں اور سود بھی لوٹا دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مال بڑھانے والے نہیں، ان کا مال حقیقت میں گھٹتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، تو پھر ان افراد کا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کو بڑھانا ہے۔ گویا
ایک طرف انسان اگر سود پر رقم دیتا ہے تاکہ مال بڑھے تو یہ نہیں بڑھ رہا، اور دوسری طرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان زکوٰۃ دے تو یہ اللہ کی طرف سے مال بڑھتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، انہوں نے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تیسری چیز ارشاد فرمائی جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ تیسری چیز ایتاء الزکاۃ یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ معجم اوسط میں امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رجل من القوم، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ارأیت اذا ادى رجل زکاۃ مالہ، حضور یہ فرما دیں کہ اگر جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے نفع کیا ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شر، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی تو شر اس سے دور ہو جائے گا۔ انسان کے پاس مال ہے، مال میں بعض مرتبہ خیر ہوتی ہے اور بعض مرتبہ اس میں شر بھی ہوتا ہے۔ انسان کے پاس مال آیا تو انسان غرور اور تکبر میں چلا گیا، مال آیا بے جا خرچ کر لیا، مال آیا تو دوسروں کو گھٹیا سمجھا، تو اس قسم کے شرور اور فتن مال میں ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی تو ان شرور سے بچ جاتا ہے، اس کو تکبر نہیں آتا، اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ مال کو خرچ نہیں کرتا، اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا، اور مال کی برکت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم عنوان ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر زکوٰۃ فرض بھی ہے، اس کی پاس مال بھی موجود ہے نصاب کے برابر، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اب ایسا شخص کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دردناک عذاب قیامت کے دن ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ جو انہوں نے مال جمع کیا سونا چاندی، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کو ان لوگوں کی پیشانیوں پر، پہلوؤں پر اور پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور ان کو یہ بات کہی جائے گی، ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ تم نے جمع کیا آج اس کا مزہ چکھ لو۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اس سبب سے بھی محفوظ رکھے کہ ہمارے پاس مال ہو اور ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ جن کو مال اسباب اللہ نے دیا ہے تو اپنے مال اور اسباب میں اللہ تعالیٰ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی بخشے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال دیا لیکن پھر بھی وہ شخص
ज़कात अदा नहीं करता, तो हुजूर फरमाते हैं मुस्सिल लहू यौमल क़ियामत शुजाअन अक़रा, क़यामत के दिन उसके माल को ऐसे सांप की शक्ल दी जाएगी जो गंजा होगा। लहू ज़बीबतान, उसकी आंखों के ऊपर दो स्याह हल्के होंगे, नुक्ते होंगे। युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये सांप उसके गले का तौक बना दिया जाएगा। सुम्मा याखुज़ु बिलिहज़ा मैह यानी शिदक़ैह, ये सांप फिर उस शख्स को जिसने ज़कात अदा नहीं की उसकी बाछों को चीरेगा। सुम्मा यक़ूल, फिर ये उसको कहेगा अना मालुक अना कंजुक, ऐ इंसान मैं तुम्हारा वही माल हूं तुमने जमा किया, मैं तुम्हारा वही खजाना हूं जो तुमने जमा किया। सुम्मा तला वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून अलाया, ये बात हुजूर ने इरशाद फरमाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कुरान करीम की इस आयत को तिलावत फरमाया, जिसका तर्जमा यह है, जो लोग इस माल में बुख्ल से काम लेते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया है, वो हरगिज़ ये ना समझें कि ये उनके लिए अच्छी बात है, बल्कि ये उनके लिए बुरी बात है। जिस माल में उन्होंने बुख्ल से काम लिया होगा, क़यामत के दिन वही माल उनके गले का तौक बना दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म के अजाब से महफूज रखे, आमीन। तो सूरत आले इमरान आयत नंबर 180 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई, जिसका मफहूम और माना हमने अर्ज कर दिया। इस हवाले से तीसरी और अहम बात समझें कि इंसान ज़कात अदा करता है। अहम तो यह है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील के साथ साथ इंसान को ज़कात अदा करने के दुनियावी फायदे भी हैं। गोया आखिरत भी बन गई और दुनिया भी बन गई। चंद फवायद सामने रखें। नंबर 1, अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होती है। नंबर 2, दौलत चंद हाथों में नहीं रहती बल्कि गर्दिश करती रहती है। नंबर 3, माल की हिर्स और हवस खत्म हो जाती है। नंबर 4, मुआशरा माशी तौर पर मजबूत रहता है। अमीरों के पास भी माल है, गरीबों के पास भी माल है, मईशत ठीक हो जाती है। गरीब और अमीर में बाहमी रकाबत का माहौल खत्म हो जाता है, झगड़ा नहीं रहता। गरीब इसलिए अमीर का दुश्मन नहीं ठहरता कि वो मुझे माल नहीं देता, भाई उसने आपको ज़कात दी है। अमीर भी गरीब से नफरत नहीं करता क्योंकि मैं इनको ज़कात दे रहा हूं, इनकी मदद कर रहा हूं, और जिसकी मदद की जाती है उससे दुश्मनी नहीं पाली जाती। और नंबर 6, चोरी, डाका, सूद वगैरह जैसे मुआशरती जराइम से हिफाजत रहती है, क्योंकि जब इंसान के पास माल मौजूद है तो वो बुरे उमूर और जराइम की तरफ क्यों जाए। इसलिए ज़कात के ज़ाहिरी फायदे भी बिहम्दिल्लाह ताला बहुत हैं। चौथी बात समझे कि ज़कात की तारीफ, ज़कात की एक तारीफ है जो डिक्शनरीज में मिलती है, लुगत की किताबों में मिलती है, और एक ज़कात की तारीफ है जो शरई है, फुक़हा किराम ने बयान की है कि ज़कात कहेंगे किसे। ज़कात की लुग़वी तारीफ, ज़कात अरबी जुबान की लुगत में, बोली में कहते हैं किसी चीज को पाक करने को और किसी चीज की नशोनमा करना, उसको बढ़ोतरी करना, उसकी तरबियत करना ताकि वो बढ़ जाए। यह ज़कात का लुग़वी माना है। और ज़कात का शरई माना, अगर इंसान के पास माल मौजूद है, अपने माल के अंदर मखसूस शराइत पाए जाने की सूरत में किसी मुस्तहिक शख्स को इस माल के मखसूस हिस्से यानी 40वें हिस्से का मालिक बना देना, यह ज़कात का शरई माना है। तो इससे वाज़ेह हुआ कि ज़कात किसे कहेंगे कि अगर किसी बंदे के माल में खास किस्म की शराइत पाई जाए, वो शराइत आगे आ रही है, खास किस्म की शराइत पाई जाए, तो वो शख्स फिर अपने माल का 40वां हिस्सा मुस्तहिक लोगों को दे दे और उनको मालिक बना दे, वो जो कुछ करें, तो इस अमल का नाम ज़कात है। ज़कात के वाजिब होने की शराइत देखिए, ज़कात किस शख्स ने देनी है, उसके लिए 2 किस्म की शराइत समझें। हम उस शख्स को भी देखेंगे जिसने ज़कात देनी है और उसके माल को भी देखेंगे जिस माल में ज़कात देनी है। कुछ शराइत हैं जो उस शख्स के साथ हैं जिसके पास माल है, और कुछ शराइत हैं जो उस माल में मौजूद होनी चाहिए जिस माल में आपने ज़कात अदा करनी है। गोया अगर ये शराइत जो हम आगे पेश कर रहे हैं, ये कुल 6 शराइत बनती हैं माल में, 4 शराइत बनती हैं उस इंसान में, ये कुल 10 शराइत हैं। अगर ये 10 शराइत उस इंसान
प्लस उसके माल में पाई जाए तो यह शख्स ज़कात देगा। और अगर ये शराइत उस इंसान में नहीं या उस माल में नहीं तो फिर इस शख्स पर ज़कात फर्ज नहीं होती। तो यहां समझना चाहिए उन शराइत को। पहली किस्म की शराइत जिनका ताल्लुक ज़कात देने वाले शख्स के साथ है, ये चार हैं। नंबर एक, मुसलमान होना। अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम है, काफिर है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़कात एक इबादत है और इबादत का अहल मुसलमान होता है, गैर मुस्लिम इबादत का अहल नहीं है। हम नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये जो इबादत हैं इस्लाम की, इसका ताल्लुक मुस्लिम के साथ है। नंबर दो, आजाद होना। देखिए, आजकल कहीं भी शरी गुलाम और शरी बांदियों का वजूद नहीं है। पहले अदवार में ऐसा होता था कि लोग मर्दों और औरतों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिनको शरी गुलाम कहा जाता है। इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता तरगीब दी है कि गुलामी से आज़ाद करो, गुलामी से आज़ाद करो। और आज एक इंटरनेशनल मुआहिदा के तहत गुलामी नहीं करनी, यानी कोई मुल्क अगर किसी पर हमला करे तो वहां के अफराद को गुलाम न बनाएगा। इसलिए आज इंटरनेशनल सतह पर भी इसका वजूद नहीं है। तो आज सब आज़ाद हैं। नंबर तीन, आकिल होना। अगर कोई शख्स दीवाना है, पागल है, तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। नंबर चार, बालिग होना। अगर कोई नाबालिग है तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। यहां यह बात समझ लीजिए, लड़का आमतौर पर 12 साल की उम्र में बालिग हो जाता है और लड़की आमतौर पर 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। लड़के में बुलूग की शराइत यह है कि मसलन उसको इहतिलाम हो जाए या उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी हामला हो गई, बीवी को हामला कर दे तो यह बालिग समझा जाएगा। इसी तरह लड़की में बुलूग की उम्र 9 साल है। 9 साल की उम्र में लड़की आमतौर पर बालिग हो जाती है। अगर लड़की बालिग हो जाती है तो उसकी अलामत कि उसको मेंसेस शुरू हो जाते हैं। अगर किसी लड़के को 12 साल की उम्र में एहतलाम नहीं हुआ, वो बालिग नहीं हुआ, तो उसकी उम्र जब 15 साल तक पहुंच जाए और अलामात बुलूग उसमें ना पाई जाए तो शरी तौर पर यह लड़का बालिग समझा जाएगा। अब इस पर अहकामात लागू हो जाएंगे, नमाज के भी, रोजा के भी, हज के भी, ज़कात के भी। बाद 15 साल चांद के एतबार से मुकम्मल हो जाए और 16वें में स्टार्ट हो जाए तो ये बालिग समझा जाएगा। और अगर उससे पहले उसमें बालिग होने की अलामत पाई जाए तो बालिग समझा जाएगा। इसी तरह लड़की 9 साल की उम्र में अलामत पाई गई तो बालिग समझी जाएगी। अगर उसमें अलामत नहीं है तो चलते चले जाएं 15 साल तक। अगर 15 साल के अंदर अंदर उस पर उसमें अलामत पाई जाती हूं तो लड़की अगर 15 साल की उम्र तक पहुंच गई और अलामात बुलूग उसमें पाई गई तो बालिग समझी जाएगी। और 15 साल की मुकम्मल हुई और बालिग होने की अलामत उसमें नहीं पाई गई तो बस 15 साल मुकम्मल होंगे चांद के एतबार से। 16वें साल में जब स्टार्ट होगी तो ये बालिग समझी जाएगी। इस पर भी ज़कात के अहकाम लागू होंगे। तो बालिग होने की ये तफसील है। ये चार शराइत हैं जो ज़कात देने वाले शख्स के अंदर पाई जानी चाहिए। और 6 शराइत वो हैं जिनका ताल्लुक माल के साथ है, जिस माल की ज़कात अदा करनी है। इन शराइत को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नंबर एक, माल पर पूरी मिल्कियत कायम हो। पूरी मिल्कियत कायम होने का माना क्या है, इसको जरा समझना चाहिए। पूरी मिल्कियत कायम होने का माना यह है कि माल के आप मालिक भी बने हों और आपका उस माल पर कब्जा भी हो जाए, तब आप पूरे मालिक होंगे। अगर किसी शख्स की मिल्कियत किसी माल में साबित हो गई है लेकिन कब्जा अभी तक नहीं मिला तो फिर ऐसे माल में ज़कात नहीं होगी। मैं इसकी मिसाल अर्ज करना चाहूंगा। एक माल में आपकी मिल्कियत ही साबित ना हो तो ज़कात तो नहीं है। मसलन आपके भाई के पास जो है वो पैसे आ गए हैं तो उनकी बीवी फौत हो गई, पैसे उनके पास आ गए, तो अब ये माल ऐसा है जिसमें मिल्कियत आपके भाई साहब की है, आपकी नहीं है। लिहाजा आप पर उन पैसों की वजह से ज़कात फर्ज नहीं है। ये बात वाज़े है। दूसरी सूरत के माल में आपकी मिल्कियत तो साबित हो जाए लेकिन कब्जा साबित ना हो। इसकी मिसाल एक खातून है,
उसका निकाह हुआ है, खामद ने 1,50,000 रुपए उसके लिए महर मुकर्रर किया। महर मुकर्रर किया, तय हो गया। अब इसकी मिल्कियत साबित है कि इसको मिलेगा। अब शादी को गुजर गए 10 साल, लेकिन खामद ने अभी तक उसको महर नहीं दिया। अब यह महर की रकम इस औरत के लिए इस तरह है कि इस महर की रकम में उस औरत के लिए मिल्कियत को साबित हो गई है कि वो मालिक है, लेकिन कब्जा साबित नहीं हुआ। इसलिए 10 साल गुजर जाएं, उसके बावजूद इस औरत पर उस महर की रकम की ज़कात वाजिब ना होगी। हां, अगर वो ज़कात अगर वो महर की रकम खावंद इसको दे देता है और ये उसकी मालिक बन गई और साथ साथ इसका कब्जा भी साबित हो गया, यानी इसके हाथ में वो रकम आ गई, अब हम कह देंगे कि इस औरत पर इस माल की ज़कात वाजिब है। तो जरूरी है कि किसी शख्स की पर ज़कात के वाजिब होने के लिए कि जो माल है इसका मालिक भी हो और उसका कब्जा भी हो चुका हो। यहां एक बात मजीद अहमियत से समझ लें कि इश्काल और एक सवाल और जवाब शायद आपके जहन में आए, उसको समझ लीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि मसलन आपके पास रकम मौजूद है, आपके हाथ में है, आपने ये रकम किसी को कर्जे में दे दी। जिसको कर्जे में दे दी उसने 2 साल तक रकम अपने पास रखी, 2 साल बाद आपको दी। अब इस रकम पर आपके जहन में सवाल आएगा कि मैं तो मालिक हूं क्योंकि वो मेरी है, लेकिन कब्जा तो किसी और इंसान का है, लिहाजा इसमें तो जक़ात वाजिब नहीं होनी चाहिए, जबकि शरीयत कहती है कि इस माल में भी जक़ात है। तो ये जो हमने शर्त रखी कि माल पर मिल्कियत पूरी कायम हो, मैं मालिक तो हूं लेकिन ये मेरा कब्जा नहीं है, कब्जा तो किसी और का है, तो मैं जक़ात क्यों दूं? इसका जवाब समझ लें। आपकी मिल्कियत उस माल में साबित है, ये तो बात वाज़ेह है। कब्जे का माना यह नहीं है कि अभी आपके हाथ में हो, बल्कि कब्जे का माना कि आपके हाथ में वो रह चुका हो। यह रकम आपके पास मौजूद थी, आपका कब्जा साबित हो चुका। अब आपने ये रकम अपने दोस्त को दे दी है कर्ज पर। तो जो रकम आपने दोस्त को कर्ज पर दी है ये कब्जा साबित शुदा रकम है, इसलिए आपकी इस रकम पर आपकी पूरी मिल्कियत साबित हो चुकी है, इसलिए इस पर ज़कात वाजिब होगी। और जहां तक हम देखते हैं कि औरत के महर की रकम को, तो औरत की महर की रकम में मिल्कियत तो साबित हो चुकी है, लेकिन वो रकम अभी तक इस औरत के हाथ में नहीं आई, इसलिए हम वहां पर कह रहे हैं कि वहां उस औरत का कब्जा साबित नहीं हुआ। और यहां यानी जब आपके पास रकम है और आपने अपने दोस्त को दे दी, यहां आपका कब्जा साबित है। उस औरत के महर में जक़ात वाजिब नहीं होगी जब तक उस पर कब्जा ना करे, और आप चूंकि कब्जा शुदा रकम अपने दोस्त को कर्ज में दे चुके हैं, इसलिए आपकी इस रकम पर जक़ात वाजिब होगी। इसलिए इस इश्काल और जवाब को अच्छी तरह समझना चाहिए। शर्त नंबर 2, आपके पास जो माल है जिसमें आप जानना चाहते हैं कि उसमें जक़ात है या नहीं, उस माल की जो मिकदार है वो निसाब के बराबर हो। निसाब क्या है, आगे बात मुस्तकिल आ रही है। तीसरी शर्त यह है कि जो माल आपके पास है ये माल आपकी बुनियादी जरूरियात से जायद हो। क्या माना? इंसान को कुछ ऐसी जरूरियात होती हैं कि जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं होता। मसलन रिहायशी मकान है, इसके बगैर गुजारा नहीं। आपका राशन है, नानो नफका जिसे कहते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं। सर्दी के गर्मी के कपड़े हैं, इंसान के अपनी हिफाजत के लिए खरीदा हुआ असलहा है, आपके घर के इस्तेमाल के बर्तन हैं, फर्नीचर है। इसी तरह कोई शख्स है, मसलन दुकानदार है, दुकान चलाता है, तो दुकान में उसके पास टेबल रखा है, कुर्सी पड़ी है, अलमारियां हैं, शोकेस है, तो ये चीजें भी जरूरियात में हैं। आपके पास गाड़ी है, देही इलाकों में किसी के पास घोड़ा है, मौलाना साहब हैं, उसके पास मुताला की किताबें हैं। एक आदमी है कि जो कारीगर है, कारीगर के पास औजार हैं, खरादिया के पास खरादिया मशीन है। किसी शख्स के पास बाल काटने के औजार हैं। एक बंदा है ट्रैक्टरों का कारोबार काम करता है, ट्रैक्टरों को खोलने और उनको जोड़ने के लिए उसके औजार हैं। तो जक़ात उस माल पर होती है कि जो इंसान की बुनियादी जरूरत से जायद हो।
जो इंसान की बुनियादी जरूरत में पाया जाता है, उन अमवाल में, उस चीज में इंसान पर ज़कात नहीं होती। यहां एक बात अच्छी तरह समझ लें, शायद एक इश्काल आपको जहन में आए, मैं उसका जवाब आगे दूंगा, लेकिन इश्काल जहन में रखें। इश्काल ये होगा कि हमारे घर में कोई चीज ऐसी पड़ी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मसलन आपके घर में एक ट्रैक्टर खड़ा है जो साल हा साल से खड़ा है, हमारी उसमें जरूरत नहीं है। कोई बड़ी सी मशीन पड़ी है, उसमें हमारी जरूरत नहीं है, तो क्या उसमें भी ज़कात देंगे या नहीं देंगे? इस तीसरी शर्त से बज़ाहिर ये समझ आता है कि जो चीज आपकी जरूरत में है, आपके इस्तेमाल में आ रही है, उसमें तो ज़कात न दें, और जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही उसमें ज़कात दें। तो सवाल खुद ब खुद पैदा हो गया कि घर में साल हा साल से रखी हुई मशीन, घर में साल हा साल से रखे हुए कपड़े, पुराना ट्रैक्टर, पुरानी गाड़ी, पुरानी कार, क्या उसमें भी फिर ज़कात होगी? क्योंकि वो माल से हमारे जरूरत असलिया से, हाजत असलिया से जायद है। इसका जवाब मैं आगे दे रहा हूं इंशाअल्लाह अज़ीज, बहरहाल सवाल ज़हन में रखिए। चौथी शर्त यह है कि आपका जो माल है जिसकी आप ज़कात की बात कर रहे हैं, वो माल कर्ज और दैन से फारिग हो। क्या माना? अगर आप पर कर्ज मौजूद है, अगर आपके जिम्मा दैन मौजूद है, तो आपके पास जो माल है उसमें से अपने कर्ज को माइनस कर दें। आपके पास जो माल है उसमें से आपके जिम्मा जो दैन है उसको माइनस कर दें। तो माइनस करने के बाद जो रकम आएगी उसमें ज़कात अदा करें। जो कर्ज होता है या जो दैन होता है उसमें ज़कात नहीं होती। मैं इसकी एक मिसाल अर्ज करना चाहूंगा, कर्ज और दैन में फर्क की, और फिर इस पूरे पॉइंट की मिसाल देखिए। आपके पास रुपए पैसे हैं, आपका दोस्त आया कि मुझे 10,000 दे दें, अगले महीने की 3 तारीख को मैं वापस कर दूंगा। अब वो आपकी रकम लेकर चला गया, आपकी वो ये रकम लेकर चला गया। अब मामला ये हुआ कि आपकी रकम उसके पास चली गई है, लेकिन ये रकम बगैर किसी एवज के है। इस रकम में एवज कुछ भी नहीं है। क्या माना? उसने आपसे रकम ली है, दिया कुछ नहीं है। हां, अगले माह की 3 तारीख को वो रकम वापस दे देगा, तो इसको कहते हैं कर्ज। दैन क्या होता है? आपका दोस्त है, आप उसके पास चले गए कि भाई आपके पास ये जो लैपटॉप पड़ा है, ये लैपटॉप मुझे दे दें। उसने कहा 50,000 का है, आपने कहा लैपटॉप दे दें, 50,000 रुपए मैं अगले महीने की 3 तारीख को दे दूंगा। आप लैपटॉप लेकर आ गए। अब आपने जो उसको पैसे देने हैं 50,000 रुपए अगले महीने की 3 तारीख को, तो ये आपने बिला वजह नहीं देने, बल्कि ये आपने एक एवज के बदले में देने हैं, और वो एवज लैपटॉप है। तो जो चीज आपके जिम्मा में लगती है किसी एवज के बदले में, वो है दैन, और जो चीज आपके जिम्मा में लगती है बगैर किसी एवज के, उसको कहते हैं कर्ज। अच्छा, जिस माल की आपने ज़कात अदा करनी है, जरूरी है कि वो माल कर्ज और दैन दोनों से फारिग हो। यानी अगर कर्ज है तो उसको भी माइनस करना होगा, दैन है तो उसको भी माइनस करना होगा। अब इसकी मिसाल समझें। आपके पास 10 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए आपने अपने भाई से लिए हुए थे, और 50,000 रुपए का आपने लैपटॉप लिया था, वो आपने देना है। अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप अपने इन 10 लाख रुपयों की ज़कात के बारे में फिक्रमंद हैं कि मैं ज़कात का हिसाब करूं। तो आप देखेंगे कि 10 लाख लिखें, फिर माइनस करेंगे आप 1 लाख। क्यों? इसलिए कि आपके जिम्मा 1 लाख है जो आपने कर्ज देना है वापस, आप उसको माइनस कर दें, बाकी बच गया 9 लाख। फिर 50,000 रुपए आपने एक लैपटॉप लिया है, उस लैपटॉप के पैसे आपने देने हैं, तो आप 9 लाख में से 50,000 रुपए माइनस कर दें, आपके पास 8.5 लाख रुपए बच जाएंगे। तो 8.5 लाख रुपए वो माल है जिसमें ज़कात देनी है। तो कर्ज और दैन हो तो उसको माइनस करना है। ये चौथी शर्त का मतलब है। शर्त नंबर 5, पांचवी शर्त यह है कि माल नामी हो। ये अरबी जुबान का लफ्ज है नामी। इसका माना यह होता है कि ऐसा माल जिसमें बढ़ने की कुव्वत हो, जिसमें बढ़ने की कुव्वत हो। जो चीज बढ़ सकती है, बाज दफा बढ़ना किसी चीज का दिखाई देता है। मसलन आपके पास मवेशी हैं,
2 थे फिर 10 हो गए, 15 थे फिर 50 हो गए। ये माल है जो बढ़ रहा है, ये माल नामी है। नंबर 2, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेशक बढ़ नहीं रहा लेकिन उसमें पावर मौजूद है बढ़ने की, जैसे सोना और चांदी है या करेंसी है। शरीयत मुताहरा ने सोना और चांदी को नामी माल कहा है, यानी उसमें पावर है बढ़ने की। रुपए पैसे को नामी माल कहा है, उसमें पावर है बढ़ने की। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा सामान मौजूद है कि आपने इस नियत से खरीदा था कि मैं इसको बेचूंगा, तो यह भी आपके पैसे में बढ़ोतरी का सबब है। माल तिजारत है, आपने प्लॉट खरीदा था पिछले साल, नियत यह थी कि मैं इसको अगले साल बेच दूंगा, तो ये प्लॉट भी आपका माल नामी है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख लीजिए, आपके घर में एक से जायद मकान है, आप उसको बेच भी नहीं रहे, आप किराए पर दे रहे हैं, तो ये माल नामी नहीं कहलाएगा। घर में हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती हैं, याकूत है, कोई भी चीज पड़ी है, शरीयत ने इसको भी माल नामी नहीं कहा। हां, अगर आपने जेवरात लिए, हीरे लिए, जवाहरात लिए, मोती याकूत या मकानात लिए ताकि बेचेंगे, अब ये पावर रखता है बढ़ने की, अब ये माल नामी होगा। तो पहले तो एक बात ये समझें कि माल नामी उस माल को कहते हैं जिसमें बढ़ने की पावर हो। मैंने 2 बातें उसमें अर्ज कर दी। शरीयत मुताहरा ने किस माल को माल नामी कहा है? 4 माल ऐसे हैं जिसको माल नामी कहा जाता है। गोया अब हम अपने मसले की तरफ वाजे आ चुके हैं कि आपने जो ज़कात अदा करनी है वो इन 4 किस्म के माल हो तब ज़कात अदा करेंगे, 5वीं किस्म इनमें दाखिल नहीं है। तो ज़कात का हिसाब करना बहुत आसान है। वो 4 चीजें कौन सी है? मसला नंबर 1, आपके पास सोना मौजूद है, चाहे सोना जिस शक्ल में भी हो, आपके पास जेवरात की शक्ल में है, अच्छा डली की शक्ल में है, सिक्के हैं, आराइशी सामान है, शो पीस हैं, जिस सूरत में भी सोना है, सोने पर ज़कात होगी। आप इस्तेमाल करते हैं, बीवी इस्तेमाल करती है या रखे हुए हैं, सोना है तो ज़कात है। नंबर 2, चांदी जिस शेप में भी हो, जेवरात, डली, आराइशी सामान, सिक्के, उसमें भी चांदी में भी ज़कात वाजिब है। नंबर 3, नकदी रकम हो, करेंसी हो, चाहे करेंसी आपके अपने मुल्क की है चाहे किसी दीगर ममालिक की है, आपके पास डॉलर है, रियाल है, आपके पास जो है वो रुपए हैं, तो जो भी आपके पास लीरा है, तो जो भी नकदी रकम हो उसमें भी ज़कात होती है। और चौथी चीज, माल तिजारत हो, माल तिजारत पर भी ज़कात होती है। माल तिजारत की मैंने हल्की सी तारीफ कर दी है कि माल तिजारत उस चीज को कहते हैं कि जब आपने खरीदी थी तो आपकी नीयत ये थी कि मैं उसको फरोख्त कर दूंगा। मिसाल के तौर पर आपने खरीदे हैं, मोबाइल खरीदा था इस नीयत से कि फरोख्त कर दूंगा, तो उसमें भी ज़कात है। आपने ट्रैक्टर खरीदा था कि फरोख्त कर दूंगा और वो नीयत अब भी बाकी है, तो उसमें भी ज़कात है। आपने मकान खरीदा था कि रिहाइश करूंगा, इसमें ज़कात नहीं क्योंकि माल तिजारत नहीं। आपने एक फ्लैट खरीदा था इसलिए कि रिहाइश करूंगा, माल तिजारत नहीं है। तो 4 चीजों को माल नामी कहते हैं, इनमें ज़कात होती है, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। मैं थोड़ी देर कबल एक सवाल आपके सामने ला चुका हूं, मैं दोबारा सवाल को दोहराता हूं और उसका जवाब इसी मकाम पर देना चाहता हूं। सवाल यह था कि माल में जो शराइत हैं उसमें एक शर्त यह थी कि माल हाजाते असलिया से जायद हो, यानी जो आपकी बेसिक जरूरियात हैं माल उससे जायद हो तब ज़कात है। जो माल बेसिक जरूरत में लग जाए तो उसमें ज़कात नहीं। इस पर सवाल है कि घर में जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वो भी तो हमारी जरूरत से जायद है, तो उसमें भी क्या ज़कात है? उसका जवाब यहां समझे। देखिए, उलमा ने वो जो शर्त बयान की है इस मकाम को समझाने के लिए बयान की है। क्या माना? एक बंदे ने, मसलन एक शख्स ऐसा है जिसने गाड़ी खरीदी थी, नियत यह थी कि मैं इस गाड़ी को आगे फरोख्त करूंगा, इस नियत से खरीदी तो माल तिजारत बन गया। अब उस शख्स ने उसको बेचा नहीं, लेकिन उसको घर में जरूरत है, बच्चे ड्रॉप करने होते हैं, खुद कहीं जाना होता है, घर वालों ने जाना होता है,
اور उनके वालिदैन हैं उनको चेकअप के लिए ले जाना होता है। उन्होंने जो माले तिजारत था ये गाड़ी, चूंकि इस नियत से खरीदी थी कि आगे बेच दूंगा, इस माले तिजारत में ज़कात उसूली तौर पर फर्ज थी, वाजिब थी, लेकिन चूंकि इसको वो अपनी बुनियादी जरूरियात में सर्फ कर चुके हैं, अपनी बुनियादी जरूरियात में लगा चुके हैं, तो अब इस गाड़ी पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। आपने एक मकान खरीदा इस नियत से कि मैं इसको फरोख्त करूंगा, ये माल तिजारत है, लेकिन आपका अपना मकान गिर गया, आपने इसमें रिहाइश रख ली, अब आप इसी में रहते हैं, तो बेशक आपकी नीयत यह थी कि मैं इस मकान को फरोख्त करूंगा, उसूली तौर पर इस मकान में ज़कात वाजिब होनी चाहिए, लेकिन यह मकान आपने अपनी बुनियादी जरूरियात में सर्फ कर दिया, बुनियादी जरूरियात में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए इस मकान पर प्लाट नहीं है। तो वो जो शर्त लगाई गई है ना, फुकहा ने लिखी है कि माल का बुनियादी जरूरत से फारिग होना, यह शर्त माले तिजारत के बारे में है। यानी अगर कोई शख्स माले तिजारत खरीदता है और फिर उसको अपनी बुनियादी जरूरत में इस्तेमाल कर लेता है, अब उस पर ज़कात नहीं है। और अगर माले तिजारत लेता है और अपनी बुनियादी जरूरत में इस्तेमाल नहीं करता, वो उसकी बुनियादी जरूरत से जायद है, मसलन आपने प्लाट लिया था, आपका अपना मकान है, आपका अपना घर है, प्लाट लिया ताकि बेच दूंगा, और उस प्लाट को आप अपनी बुनियादी जरूरत में नहीं लगा रहे, अब उस प्लाट पर ज़कात है। तो अब इस तफसील से वाज़े हो गया कि अगर आपके घर में पुराना ट्रैक्टर मौजूद है तो बेशक ये बुनियादी जरूरत में दाखिल नहीं है, फिर भी ज़कात नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो आपने इस नियत से खरीदा ही नहीं है कि उसको फरोख्त कर दें, वो तो आपके काम का था, घर में पड़ा पड़ा खराब हो गया। एक खातून है, वो शादी होकर आती है उसकी, और उसको उनके वालिदैन ने बहुत ज्यादा जहेज दिया है, ऐसे कपड़े भी दिए हैं जो साल साल इस्तेमाल नहीं होते। अब अगरचे वो साल साल इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ज़कात फिर भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने जो बात की थी कि वो बुनियादी जरूरत से जायद हो, वो उस माल में की थी कि जिस माल को आपने इस नियत से खरीदा हो कि आपने फरोख्त करना है, फिर ज़कात है। चूंकि बच्ची को कपड़े वालिदैन ने दिए हैं, वो माल तिजारत ही नहीं है, इसलिए जरूरत से जायद भी हो तब भी ज़कात नहीं। तो आपके इस सवाल का जवाब मैंने अर्ज कर दिया, इसको दोबारा भी अच्छी तरह समझ लें ताकि बात वाजे हो जाए कि आपकी ज़कात सिर्फ 4 किस्म की चीजों में है: सोने में, चांदी में, नकदी रकम में और माले तिजारत में। ये 5 शराइत हो गई। और छठी शर्त क्या है? छठी शर्त यह है कि आपके पास जो माल मौजूद है उस पर साल गुजरा हुआ हो। आपने मसलन आपके पास निसाब आया था यकुम रमजान को, अगले साल यकुम रमजान को आप फिर हिसाब करें, अगर आपका माल निसाब के बराबर है, जिसकी तफसील मैं आगे कर रहा हूं, निसाब के बराबर है, तो फिर आप पर ज़कात फर्ज है। अब आप साल गुजरने के बाद ज़कात अदा करें। मिसाल के तौर पर ये जो 2023 चल रहा है, 2023 में ज़कात का निसाब है 1,18,300 रुपए। यकुम रमजान को आपके पास 1,18,300 रुपए जमा हो गए। आपने ये किया कि आपने डेट लिख ली कि मेरे पास इतनी रकम है। अब अगले साल आप चले, अगले साल आपने देखा कि आपके पास 1,50,000 रुपए है, और उस वक्त अगले साल जो निसाब था मसलन वो 1,30,000 है, तो इसका माना कि अगले साल भी आप साहिब निसाब हैं। अब अगले साल आपके पास जो रकम मौजूद हो आप उसकी ज़कात अदा करें, यानी उसका 40वां हिस्सा राह खुदा में दें, उन लोगों को दे जिनको ज़कात देना जायज है। तो ये आपकी ज़कात इस तरह जो है वो अदा हो जाएगी। तो छठी शर्त यह है कि आपका माल उस पर साल गुजर चुका हो। यहां एक बात समझ लीजिए कि हमने ये जो बात की है कि आपके माल पर 1 साल गुजर जाए, तो इसका माना क्या है? इसका माना हरगिज हरगिज ये नहीं कि आपके पास जो रुपए हैं, जो माल है, उसके एक एक जुज पर मुस्तकिल साल गुजरे, ये मतलब नहीं। ये जो हमने कहा कि माल पर साल गुजरे, इसका मतलब यह है कि जिस तारीख में आपके पास, यानी इस्लामी कमरी तारीख में, चांद की तारीख में आपके पास रुपया पैसा या निसाब मौजूद था,
तो वो आपने तारीख नोट कर ली। ये तारीख आपकी कमरी होनी चाहिए। अगर तारीख याद नहीं है तो कोई भी कमरी तारीख तय कर लें। आइंदा साल जब वही तारीख दोबारा आएगी तो उस वक्त हिसाब कर लें। साल के दरमियान में पैसे आते जाते रहें तो इससे साल गुजरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बतौर मिसाल के समझें। मसलन आपके पास गुज़िश्ता साल 10 रमजान को 5 लाख रुपए के मालिक थे आप, जिस पर एक साल भी गुजर गया था और उसकी ज़कात भी अदा कर दी गई थी। इस साल रमजान तक जो रकम आती जाती रहे उसका हिसाब नहीं है। बस इस रमजान में देख लें कि आपके पास अब कितनी रकम है, उस पर ज़कात अदा करें। मसलन इस रमजान में 6 लाख रुपए आपके पास कर्ज निकाल कर बाकी बच गया, तो उन 6 लाख पर आप 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करेंगे। तो ज़कात किस पर फर्ज होती है? उसके लिए 10 शराइत हैं। 4 शराइत उस इंसान में और 6 शराइत उस माल में। यूं 10 शराइत अगर किसी के पास पाई जाएं तो उस पर ज़कात फर्ज होती है। ये एक सबक हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल हम दूसरे सबक को पढ़ेंगे, सबक नंबर 2 कि साहिब निसाब कौन है। ये भी बहुत अहम सबक है, तो इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम साहिब निसाब होने की वजाहत करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।